Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello my dear graded students, how are you all? Again I hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. Today we are going to study the part 2 of your supplementary chapter 2 Children at Work. In the last video we had studied comprehension check 1, that is part 1. And in this video we are going to understand comprehension check 2 and we are going to discuss the following points. Velu follows a friend through the crowded streets to a big building. Behind the building there is a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. Let's begin. He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. और फाइनली वो उस गर्ल के पीछे जो भाग रहा था. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एट लास्ट ही डिसाइडेड कि वैसे भी उसको वो इस अनजान सिटी में अनजान प्लेस में किसी को जानता नहीं है एंड ही डज़ नॉट नो वेयर टू गो. सो ही मेड अप हिज माइंड टू गो बिहाइंड दैट गर्ल. सो ये जो सेकेंड पार्ट है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है कि वो उस गर्ल के पीछे भाग रहा था. फाइनली उस ही मैनेज टू रीच to the girl before she left the station. उसने स्टेशन छोड़ा उससे पहले ही वेलू उस गर्ल के साथ पहुंच गया. और जब स्टेशन के बाहर वो लोग रोड पे निकले तो वेलू ने देखा कि इतने सारे व्हीकल्स आते जा रहे थे और वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे. और जो स्मोक और डस्ट था वो सब सारी साइड से उसके तरफ उड़ रहा था. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. और इतनी क्राउडेड रोड पे उन लोगों को बहुत वेट करना पड़ा कि जब थोड़ी सी गैप मिले, जगह मिले, तब वो उस रोड को क्रॉस कर सके. और वेलू जो था वो तो हेजिटेट, मतलब उसे तो डर ही लग रहा था, घबरा ही रहा था वो कि वो कैसे रोड को क्रॉस करेगा और अदर साइड पहुँचेगा. तभी उस गर्ल ने उसको ड्रैग किया, मतलब हाथ पकड़ के उसको खींच के रोड के अदर साइड पे ले गई. What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. और गर्ल ने उसको थोड़ा सा डांटते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम गाय चरा रहे हो कि इतने धीरे धीरे चल रहे हो? अगर तुम रोड के बीच में ऐसे ही खड़े रहोगे तो चटनी बन जाओगे. इट मीन्स द व्हीकल विल मूव अपॉन यू. Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. How they managed to come through that? वेलू को तो अभी भी डर लग रहा था और उसने जब पीछे स्टेशन की तरफ देखा इतने सारे ट्रैफिक में, तो ही वॉज वंडरिंग कि वो खुद इतना बड़ा रोड कैसे क्रॉस करके आ गया. They walked along the side of the road under some huge signboards. Velu looked up at the pictures. Car tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. और जैसे ही उन्होंने आगे रोड की तरफ वो चलने लगे तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स थे, होर्डिंग्स थे, जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स थे. कार टायर्स के, पेन्स के, एक वुमन जो है वो बॉक्स होल्ड करके पॉज दे रही है. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में लिखा था. सो वेलू वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. The girl turned onto a wide bridge and walked up. Velu stopped and peeped over the railing. Under him, the road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. Velu squinted and read the Tamil sign, Central Jail. अब जैसे ही वो लोग आगे चले जा रहे थे, एक ब्रिज आया, उन्होंने वो ब्रिज क्रॉस किया, फिर आगे चले तो वहाँ पे
ब्रिज के ऊपर से ही वो लोग चल रहे थे, तो उसने रेलिंग के नीचे देखा तो बहुत सारे रोड जा रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी। एंड देन थोड़ा आगे चल के एक बड़ी सी बिल्डिंग आई जिसके चारों तरफ वॉल थी। एट दैट टाइम दैट गर्ल टोल्ड वेलू दैट अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो बहुत जल्द तुम भी इन बार्स के पीछे ही होंगे। वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन। उसने तमिल साइन देखी सामने, तो वहाँ पे लिखा था सेंट्रल जेल। इसका मतलब अगर वेलू ध्यान नहीं रखेगा और कुछ गलत काम करेगा तो जल्दी वो जेल में ही होगा। वाई आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। वेलू ने कहा कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। टू दैट द गर्ल रिप्लाइड कि तुम्हें गलत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर तुम पकड़े गए तो भी वो लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे, सो ध्यान रखो कि यू डोंट गेट कॉट। What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. What are you carrying in that bag? Things, bottles, paper? Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? अब जैसे ही वो लोग ब्रिज के नीचे उतरते जा रहे थे तो जो गर्ल थी वो रास्ते में से उसे जो भी प्लास्टिक के कप्स और वो मिल रहे थे वो उठाई जा रही थी। तब वेलू वॉज वंडरिंग कि ये क्यों उठा रही है। यही चीज़ें उसने उसको स्टेशन पे भी पिकअप करते हुए देखा था। तो ही आस्क्ड हर कि ये तुम इस बैग में क्या डाल रही हो। तो शी सेड बॉटल्स, पेपर एंड डिफरेंट प्लास्टिक थिंग्स। तो वेलू वॉज वंडरिंग कि इतनी सारी चीज़ों को उठा के वो क्या करती होगी, लेकिन अब और क्वेश्चन पूछने में उसे ही वॉज फीलिंग शाई। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी दिन का ही समय था, लेकिन दिस इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स द आफ्टरनून। सो वेलू ने ही वॉज बेयर फुट, ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी शूज़ और एनी स्लीपर्स। सो धूप में उसके पाँव जल रहे थे। सो ही ट्राइड टू वॉक इन द शेड, लेकिन जितना वो शेड में चलेगा उतना ही हैज़ टू मेकअप विद दैट गर्ल, उसके साथ ही उसको चलना पड़ेगा। जो गर्ल थी वो तो बहुत ही फास्ट चल रही थी। एंड वेलू वॉज थिंकिंग कि अब और कितना दूर है फूड। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, read Velu slowly. A sign with letters made of flowers said, Groom J.V. Vinayagan, Bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses taped onto it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. Almost 1 घंटे तक वो लोग चले। फिर जब वो रुके तो सामने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर उसका नेम लिखा था, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, read Velu. It was a Tamil, written in Tamil language. A sign with letters made of flowers. That was a, and ये जो उसका नाम है कल्याण मंडपम, it is meaning that इट वॉज़ अ मैरिज हॉल। और वहाँ पे फ्लावर से ग्रूम का नेम लिखा था, J.V. विनयगम, एंड ब्राइड का भी नेम लिखा था। और वेलू देख रहा था वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कार्स पार्क की हुई थी, और एक तो कार ऐसी थी जिसके ऊपर फ्लावर का गार्लैंड लगा हुआ था और बहुत सारे रोजेस भी लगे हुए थे। और वो जो गर्ल थी वो तो चलते चलते उस कार पे से एक रोज़ उसने उठा लिया और अपने हेयर में भी लगा लिया। Come on, she said. Are we going to eat here? asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. The girl asked him to walk fast, and Velu asked कि यहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं? Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. 2 goats were standing on the pile.
fighting for a banana leaf. A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squishy banana and held it out to Velu. अब वो गर्ल उसे हॉल के पीछे लेके गई. वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्बेज बीन था जिसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ था और उसके ऊपर 2 गोट्स भी खड़ी थी जो जगड़ रही थी एक बनाना लीफ के लिए. बहुत सारे मधुमक्खियाँ भी थी और एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी. और उसी कचरे में से एक बनाना उठाया उस गर्ल ने और वेलू को दे दिया. Here's your food. Velu was shocked. Are we going to eat their leftovers? What do you think I am, a dog? I only take untouched food here. Here's some more catch. She threw him a vada. Velu looked at it was with distaste. अब वेलू ने उससे पूछा कि क्या हम उन लोगों का बचा हुआ खाना खाएंगे. तो दैट गर्ल इज टेलिंग नो. डू यू थिंक आई एम अ डॉग? मैं सिर्फ कचरे में से वही खाना उठाऊंगी जिसको किसी ने भी टच नहीं किया हो. और उसने उसकी तरफ एक वड़ा भी थ्रो किया. एंड वेलू वॉज लुकिंग इट विथ डिसटेस्ट. मतलब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. Come on, hero, eat it. You think I like it? I told you I'll find you something to eat. Don't think I have money to buy food for you. You did better eat what you get until you have your own money. Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. तब उस गर्ल ने उसको बोला कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे लिए फूड फाइंड कर दूंगी. बट डोंट थिंक दैट आई हैव मनी. जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं आ जाते तुम्हें ऐसे ही जो मिल रहा है वो खा लेना है. थोड़ी देर तो वेलू को अच्छा नहीं लगा लेकिन उसे भूख भी लगी थी इसलिए ही गल्प्ड द बनाना एंड द वड़ा. और उसे तुरंत ही फेल्ट बेटर. और उसे तो और बहुत ज़्यादा खाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली गर्ल को सिर्फ एक और बनाना मिला जो वो खुद खा गई. It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want. I have to work. I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. Velu panicked. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. Hey, he called. He did not even know the girl's name. Hey, what is your name? He asked, hurrying behind her. फिर गर्ल ने उसको बोला कि अभी तो बहुत जल्दी है, उन लोगों ने सिर्फ टिफ़िन खाया है. अगर तुम्हें और भी भूख लगी है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये लोग लंच फिनिश करें. तुम चाहो तो रुक सकते हो, मेरे पास तो बहुत सारा काम है तो मैं जा रही हूँ. और उसने उस कचरे में से प्लास्टिक की बॉटल्स उठाई और अपने सैक में रख दी. नाउ वेलू वॉज हैविंग अ टेंशन दैट अगर ये गर्ल भी चली गई तो वो तो जानता नहीं है कि कहाँ खड़ा है. देन व्हाट ही विल डू. सो ही रैन आफ्टर हर. Even he was not knowing her name, so he asked the girl her name. She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without knowing my name? Jaya. उसने बोला कि बिना मेरा नाम जाने ही तुम मुझे कब से फॉलो किए जा रहे हो. My name is Jaya. So to that, Velu replied that I am not following you. What then? Who got you food? Can I come with you? Where are you going? Come if you want. This bag is full. I have to go home to get another one. Velu said कि I am not following you. To that the girl asked, तो क्या तुम्हें खाना किसने खिलाया? Now Velu realized कि he has to bear the girl as he does not know anything in the unknown place. So he asked her very politely, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ पे जा रही हो? So girl replied, कम इफ़ यू वांट. अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, मेरी ये जो बैग है वो फुल हो गई है तो मुझे घर पे जाके दूसरी बैग लेनी पड़ेगी. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द पार्ट 2 ऑफ योर सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 2. अगेन पार्ट 1 के जैसे आपका टास्क यही है कि इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस दिए हैं आपको इन पैराग्राफ में से उसके आंसर्स अपने वर्ड्स में फाइंड आउट करने हैं. ओके,
थैंक यू एंड टेक केयर।